यीशु क्रिस्तನ नामದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज एक स्पेशल सर्विस हम लोग मना रहे हैं, थैंक्स गिविंग सर्विस। ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ हम लोग करेंगे। ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ,
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ರಾಗದ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಂಥ ಜೀವನದ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕ, ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಕೃತಜ್ಞತವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಲೇಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಉದಾಹರಣೆವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ WSS ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು. ಅವರ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ವಚನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಂದು ಪ್ರಾಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣಿಸು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಅವರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರೈಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು, ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. आइए इस समय में आराधना में हमें गीत को गाएंगे. कन्नड़ गीत स्तोत्रದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ.
ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀನೇ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀನೇ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನನಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. 24 मार्च 1820 ने मार्च 24 तारीख को 1820 उस साल में जो है एक लेडी ने जन्म लिया था जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्रूस्टर या उस सिटी या उस टाउन का जो है ये लेडी थी. उनका नाम जो है शायद कुछ लोग जानते भी है, फ्रांसिस जेन क्रॉस्बी, जिसको हम लोग फैनी क्रॉस्बी के नाम से भी जानते हैं. ये एक बैप्टिस्ट मिशनरी थी, एक ले प्रीचर थी और एक उसका उल्लेख में लिखा है प्रोलिफिक हिम राइटर. इसका मतलब है उसने बहुत सारे गीतों को लिखा है परमेश्वर की आराधना के लिए. जो हम लोग संगीता पढ़ते हैं, संगीता हम लोग गाते हैं, उस संगीता, उसको इंग्लिश में हिम्स कहते हैं, वो हिम्स में बहुत सारे हिम्स जो है उनके ही हम लोग गाते हैं. बहुत सारे इंग्लिश में लिखा है, उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषाओं में भी जो है आज हम लोग जो है उस गीतों को गाते हैं. करीब 9000 से ज़्यादा गीतों को जो है इन्होंने लिखा है और परमेश्वर की सेवकाई में इस तरीके से जो है अपने योगदान को दिया है. अगर आपको पता है कुछ गीतों को जो है मैं आपको बताना चाहूँगा. प्रेज हिम, टू गॉड बी द ग्लोरी, ओ जेंटल सेवियर, ऐसे कुछ गीतों को इन्होंने लिखा है. और एक फेमस सॉन्ग है ब्लेसेड अश्योरेंस, ब्लेसेड अश्योरेंस जीसस इज माइन. ये गीत शायद आप लोगों ने सुना होगा. ये गीत को भी जो है उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर रीति से. हर एक गीत में एक स्पेशलिटी है. इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर को स्तुति किया है, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया. दिस इज नॉट अ इमोशनल सॉन्ग. ये बोलते हैं ना आंसू को बहने वाला या भावनाओं के साथ लिखा हुआ नहीं है. ये परमेश्वर की स्तुति में, उसकी आराधना, उसको नाम को ऊंचा उठाते हुए जो है इस गीत को लिखा गया. अगर आप वर्डिंग्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके भाव को जब आप लोग समझेंगे.
लेकिन क्या आप लोग विश्वास करेंगे कि ये लेडी जिन्होंने ऐसे परमेश्वर के लिए कार्य किया, इतने गाने को लिखा है और बहुत सारे लोग इन गीतों को गाकर एनकरेज होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, खुश होते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे कि अगर मैं कहूँ ये लेडी जो है नेत्रहीन थी, यानी शी वॉज अ ब्लाइंड, वो एक अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। अंधे होने के कारण, अंधे होने के बावजूद इसने जो है ये सब कार्य को किया, अपने परमेश्वर के सेवकाई को किया और ऐसे आराधना में जो है उसने गीतों को लिखा है। यस, क्रॉस्बी वॉज ब्लाइंड, वो एक अंधी थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। इन्फेंसी यानी बहुत ही छोटे, यानी बोलते ना 5-6 महीने की होगी उस वक्त जो है उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसको कोई दिखाई नहीं देता था बचपन से लेकर जो है। और उसका पिता की मौत जो है उस वक्त हुआ जब ये सिर्फ 6 महीने की थी। उसके मम्मी ने और ग्रैंड मदर ने उसको पालन पोषण किया और सच में उन्होंने इस तरीके से उसको सिखाया, परमेश्वर की बातों को बताया, क्रिश्चियन या मसीही लोग कैसे होते हैं ये बताया, और उनके जरिए इसने बाइबल को जाना और बहुत बड़े बड़े बाइबल्स के पैसेजेस, वचन को जो है ये मेमोराइज कर पाई, बाय हार्ट कर पाई, याद रखती थी बहुत सारे जो है परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि ये पढ़ नहीं पाती है तो इसीलिए जो है देख नहीं पाती है, देख कर पढ़ेगी नहीं, तो ये जो सिखाया हुआ चीज़ है उसको बाय हार्ट करके जो है वो उसको याद करती थी। और उसके बारे में जो है लिखा हुआ है कि शी डेवलप्ड अ क्लोज रिलेशनशिप, उसने यीशु मसीह के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा बनाया उसके प्रार्थना के जरिए, और उसके मन में कभी भी इंच पर भी कड़वाहट नहीं आया कि उसको दिखाई नहीं देता है, दैट शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी थी, कोई कड़वाहट, कोई परमेश्वर के विरुद्ध जो है उसने कभी बात ना कही, कभी सोचा नहीं, ऐसा उसके बारे में जो है उल्लेख किया गया है। इनफैक्ट इसके बावजूद कि वो अंधी थी, लेकिन वो कहती थी वो बहुत खुश थी और वो धन्यवाद करती थी। क्यों? क्योंकि वो अंधी है। एक्चुअली वो उसका सोच ऐसा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधी हूं, इसलिए जो है मैं दुनिया या दुनिया का अनेक चीज जो है मैं नहीं देख पा रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिता रही हूं। क्योंकि शायद अगर आंख होता तो मैं दुनिया को देखती और उसके मोह माया में मैं भी पड़ जाती, इसलिए जो है वो खुश रहती कि मैं अंधी हूं, कि मैं दुनिया के मोह माया में नहीं पड़ूंगी, सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को निभाऊंगी और परमेश्वर को जो है वो धन्यवाद देते हुए चली। उसकी कमजोरी के लिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद कहा और परमेश्वर के ऊपर गर्व किया उसने। इतनी महान ये लेडी थी। उसका यीशु मसीह के साथ इस तरीके से रिश्ता था। एक शब्द को, एक स्टेटमेंट को मैं पढ़ना चाहूंगा, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी उसको समझाऊंगा। हर डिवोशन टू हर मास्टर इज रिफ्लेक्टेड इन हर वर्ड्स। उसके शब्दों में जो है उसका हम लोग भक्ति को देख सकते हैं मसीह के लिए। ऐसे लिखा है उसने, इट सीम्ड इंटेंडेड बाय द ब्लेसेड प्रोविडेंस ऑफ गॉड दैट आई शुड बी ब्लाइंड ऑल माई लाइफ एंड आई थैंक हिम फॉर द डिस्पेंसेशन. I might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the beautiful and interesting things about me. वो कहती है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी, परमेश्वर को स्तुति करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती हूँ। शायद क्योंकि अगर मैं देख सकती तो मेरा मन यहाँ वहाँ भटकता और परमेश्वर की आराधना में ऐसे गीतों को मैं नहीं लिखती, परमेश्वर की खूबसूरती को इतना अच्छे से मैं नहीं देख पाती। मैं अपने आप को देखकर अपने आप में इंटरेस्ट लेती और इस दुनिया में जो है मैं इंटरेस्ट लेती, शायद अगर मुझे आंख होता तो। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट इट इज। कितना बड़ा बात उसने कहा है। सच में जो है उसका एक ही इच्छा था कि परमेश्वर के जरिए परमेश्वर की बातों को जो है लाखों करोड़ों लोगों तक जो है वो पहुंचा सके, और उसने उस करके दिखाया। उसके गीतों के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को, बातों को जो है अनेक लोगों तक जो है उसने पहुंचा दिया। आज भी उनके लिखे हुए गीत जो है आज हम लोग कलीसियाओं में गाते हैं, बहुत सारे कलीसिया उनके गीतों को गाते हैं।
और गीत लिखने का इसको छोड़कर भी और बहुत सारे उसने काम किया है। जैसे वो बहुत ही एक्टिव मिशन वर्कर थी। थोड़ा शौक होता होगा कि अरे दिखाई नहीं देता है कैसे उसने काम किया, लेकिन शी वॉज अ लेडी ऑफ सर्विस, शी वॉज अ लेडी ऑफ मिशन। वो सेवकाई करने वाली जो है एक स्त्री थी। वो जो है बहुत ही अपने परमेश्वर के लिए बहुत अनेक सेवकाई उसने किया। एक वक्त ऐसा था कि उसके समय में कोलेरा जो है अटैक किया था उसके पूरे शहर में या उसके पूरे राज्य में। उसको जो है एक मौका था कि आप जो है इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाइए। उसका पूरा सुविधा, सब फैसिलिटी जो है उसके लिए था कि वो दूसरे शहर में जाकर सुरक्षित रहे, क्योंकि कोलेरा इस राज्य में बहुत फैल रहा है। तो उसको कहा गया कि आप दूसरे शहर में जाकर आप सुरक्षित रहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहकर, मेरे एरिया में रहकर मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूं, लोगों की मदद करूंगी जहां पर मेरी जरूरत है। आज कुछ ऐसे ही स्थिति में हम लोग हैं। उस दिन कोलेरा था, आज कोरोना है। अगर हमें कहा जाए कि अभी यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप कहीं बाहर जाइए, फॉर एग्जाम्पल दुबई आप चले जाइए, वहाँ पर कुछ सब कुछ सेफ है। क्योंकि मैं एक्चुअली न्यूज़ में सुना कि IPL जो क्रिकेट मैचेस है वो इंडिया से निकाल कर दुबई में जा रहे हैं। इसका मतलब है वहाँ पर कोरोना की महामारी का भय नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल लिया है कि हम लोग सुरक्षित रहे अरब कंट्री में, दुबई में जाकर जो है। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो कितने लोग ये कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। फैसिलिटी सब कुछ आपको करके दिया जाएगा, आपको उधर जाने का बहुत ही अच्छा सुविधा किया है, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से हम लोग सब बांध लेंगे, भाग जाएंगे उधर, अच्छा काम अच्छे रीति से हम लोग जो है अपने ज़िंदगी को जिएंगे और कोरोना से बाप रे बच गए हम लोग करके बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन कितने लोग अपने ही शहर में रहकर इस कोरोना के बीच में भी हम लोग मदद करेंगे, जहाँ पर मेरी ज़रूरत है, जहाँ पर मैं कर सकता हूँ हम लोग मदद करेंगे। पता नहीं हम में से कितने लोग ऐसा चाहेंगे, ऐसा सोचेंगे। लेकिन क्रॉसबी ऐसी लेडी थी, उसने यही सोचा कि मैं यहीं पर रहकर लोगों की मदद को करूंगी जितना मुझसे हो सकता है। शी रिफ्यूज्ड टू लीव द सिटी। एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर कोई अंधा रहते हुए परमेश्वर के लिए इतने कार्य को कर सकता है, परमेश्वर को इस लेवल तक स्तुति आराधना के गीत लिख सकता है, परमेश्वर को इस लेवल तक धन्यवाद दे सकता है, आप और मैं क्या कर रहे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसे है? आपका और मेरा जीवन जो है किस तरीके से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं? और एक छोटा सा एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा मैं, जिसमें परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम दिखाई देता है। वो कहती है अपने कोई स्टेटमेंट में, उसको रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा वो कहती है, व्हेन आई गेट टू हेवन द फर्स्ट फेस दैट शैल एवर ग्लैडन माई साइट विल बी दैट ऑफ माई सेवियर। वो कहती है जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मेरा जिंदगी खत्म होकर मैं स्वर्ग में जाऊंगी, जो पहला शक्ल मैं देखने वाली हूं, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, वो किसका होगा? मेरे मसीह का होगा, मेरे उद्धारकर्ता का होगा, मेरे यीशु मसीह का होगा। ये उसका स्टेटमेंट है। आप और मैं किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं? आज हम लोग ने टॉपिक लिया धन्यवाद। मैंने शायद वो वचन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು कृतज्ञता स्तुति माडिरी। परमेश्वर का जो है हमें धन्यवाद देना, बी थैंकफुल इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग मुझसे सवाल किया है, मैं भी बहुत बार सोचा अरे कैसा धन्यवाद देंगे हर समय पर? ऐसा धन्यवाद देंगे। दिस इज द रियल क्रिश्चियन लाइफ। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल को लिया है, लेकिन यही आज का मेरा वचन है। जो पवित्र शास्त्र हमने पढ़ा, आपने शायद पढ़ा होगा अपने घर पे, जो 10 कोड़ी परमेश्वर ने चंगा किया है, उसमें से 9 गायब हो जाते। एक ही व्यक्ति आकर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह सवाल करता है वो 9 कहां पर है? यस, लेकिन आज मेरा ये सवाल है, वो 9
पता नहीं कहाँ पर गए, याजक को दिखाने के लिए अपने जीवन को अच्छे रीति से उन्होंने जिया। चंगे तो हो गए वो लोग, लेकिन शायद परमेश्वर के पास वो नहीं आए। लेकिन मेरा ये सवाल है, हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना, अरे ये लोग वापस आए नहीं धन्यवाद देने के लिए। बट टुडे माय टॉपिक इज थैंक्स गिविंग नेक्स्ट लेवल। धन्यवाद एक अलग ही स्तर पर, ऊंचे स्तर पर, जो एक क्रिश्चियन को, एक मसीह को होना जरूरी है। वो 10 लेपर्स चंगे हो गए, एक आया, 9 चले गए। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर आप चंगे नहीं हुए तो क्या, आप धन्यवाद दे सकते हैं? क्योंकि ये अंधी व्यक्ति थी, फिर भी परमेश्वर को इसने भरपूरी से धन्यवाद दिया। उसका जीवन ही थैंक्स गिविंग वाला लाइफ था। आज हमारे जीवन में बहुत कमी घटी है। हो सकता है हम लोग बीमार हैं, हो सकता है हम लोग कमजोर हैं, हो सकता है हम लोग गरीब हैं, हो सकता है मेरा हाइट छोटा है, हो सकता है मैं काला हूं, हो सकता है मेरे पास ये नहीं है, हो सकता है मेरे पास वो नहीं है, हो सकता है कि अरे मैं जो भी कर रहा हूं मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, हर चीज मेरा नुकसान में है, मेरा घर चला गया है, मेरे बच्चे जो है बहुत गलत रास्ते पर चले गए, मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरे घर पे झगड़ा है, मेरे पति के साथ, मेरे पत्नी के साथ मेरा नहीं बन रहा है। हर जगह पर केओस, नेगेटिव चीजें हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन क्या इस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? आज का मेरा वचन वही है, आपकी कमियों में क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? ये सवाल भले आज मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आई इंस्पायर, मैं प्रेरित हूं उनके जीवन से, फैनी क्रॉसबी उनके जीवन से। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमसे ये सवाल कर रही है। मैं इतना होने के बावजूद मैंने परमेश्वर का इतना कार्य किया और हर समय पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ऐसा मेरा जीवन था। आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं है हमारा ध्यान उसके ऊपर ही है। लेकिन उस लेडी ने बताया, जो नहीं है उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है। क्योंकि आपके नेगेटिविटी से भी, आपके कमजोरी से भी, आपके कमियों से भी जो है परमेश्वर चाहता है आप उसमें भी आशीर्वाद को दे सकते हैं। एंड दैट टाइम वी विल लिव द रियल थैंक्स गिविंग लाइफ। ये सवाल हमारे मन से हट जाएगा कि हर समय पर कैसे धन्यवाद कर सकते हैं। हर समय पर धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि आपके नुकसान में भी परमेश्वर ने जो है एक आशीष छुपाया है। अगर आप उस मसीह आंखों से अगर आप उसको देखोगे, जैसे इस लेडी ने देखा। अंधा होने के लिए कौन धन्यवाद कर सकता है बताइए आप? मैं अंधी हूं इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी क्योंकि मैं ये सब अच्छे से कार्य कर पाई हूं, ऐसा कौन कहेगा? दिस इज द ट्रू क्रिश्चियन लाइफ ऑफ थैंक्स गिविंग टू गॉड। आज एक ही बात मुझे समझ में आता है, थैंक्स गिविंग टू गॉड इन माई शॉर्टेज, इन माई शॉर्ट सप्लाई। जब मेरी जीवन में कमतरता है, कमी है, कुछ घटी है, उस समय पर परमेश्वर का धन्यवाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वी हैव टू लिव अ थैंक्स गिविंग लाइफ। क्योंकि जब कमियों में हम लोग धन्यवाद करते हैं, यस, गॉड जो है उस कमियों को इस्तेमाल करके हमें महान बना सकता है। दिस इज माई गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको ऐसा बनाया है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। बहुत सारे लोग जो है अपने शारीरिक रीति से, अपने परिस्थितियों को देखकर जो है हमेशा कोसते हैं, क्या मेरा लाइफ ऐसा है, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा कर रहा है, इतना प्रेयर कर रहा हूं, इतना मैं चर्च जाता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये सब कमी आ रही है। तेरे कमी के लिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, उस सृष्टि को हम अपमान कर रहे हैं। हम खुद अपने आप को जो है परमेश्वर की सृष्टि अगर मानते हैं तो ऐसा परमेश्वर ने बनाया। एवरीवन इज यूनिक। सबका परिस्थिति सेम नहीं होगा, हर एक का परिस्थिति अलग होगा, लेकिन हर परिस्थिति में एक चीज कॉमन हो सकता है, एंड दैट इज अ थैंक्स गिविंग। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर स्वर्गीय राज्य हमें देगा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम लोग। भले हम लोग अंधे हैं, छोटे हैं, कमी है, घटी है, बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज द ट्रूथ। ये सच्चाई है, ऐसा लाइफ हमारा होना अति आवश्यक है। आई एम इंस्पायर्ड। मैं प्रेरित हूँ इस कहानी से। मैं उस 10 लेपर्स की कहानी से एक ही सवाल मुझे आता है, अगर वो चंगे नहीं होते तो क्या? वो जो 10वां बंदा आया था, हम लोग उसका बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर वो 10वां बंदा चंगा नहीं होता तो क्या वो परमेश्वर के राज्य में जीता? आज हम लोग भी शायद वैसे ही है।
हम लोग शायद बोलेंगे अरे कैसा है, अच्छा होएगा तो ही परमेश्वर चाहिए, अच्छा नहीं हुआ तो परमेश्वर को भूल जाओ, परमेश्वर को गाली दो, परमेश्वर को कोसो। हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। अगर किया है तो पश्चाताप कीजिएगा, ये गलत है। परमेश्वर ने ये जीवन इस तरीके से बनाया है कि हर कदम पर परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है। और वो धन्यवाद जब हम लोग देते हैं वही हमारे जीवन में एक नई खुशी को, एक नए सामर्थ्य को, एक नए ताकत को लेकर आएगा, और ज़रूर लेकर आएगा। अगर परमेश्वर चाहता है ये कमजोरी के साथ हम जिए, उस कमजोरी के साथ हमें जीना सीखना जरूरी है, और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। वो कमजोरी ही जो है हमें आगे जाके जीत दिलाने वाली है। याद रखिएगा, अगर आप लोग किसी चीज़ में कम है, किसी चीज़ में कमजोरी है, परमेश्वर उसके जरिए शायद आपको जयवंत जीवन देना चाहता है, नए आशीष को लाना चाहता है। लेकिन ऐसा विजन रखिए, ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना सीखिएगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। Hallelujah.
ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಾನು ಓರ್ನಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೇವಕರು. ಶ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಿಷ್ಟನ ಬಳಿಗೆ. ಶ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಿಷ್ಟನ ಬಳಿಗೆ. ಬೇಗ ಭ್ರಮೆಯು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆಗೋ ನೀ ಮನವೇ. ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ. ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಓರ್ನಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೇವಕರು. ಮಾತಾಪಿತರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಹಾದುಕೊಂಡಾರೇನು. ಮಾತಾಪಿತರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಹಾದುಕೊಂಡಾರೇನು. ನೀನು ನೀತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭವಿಸು ಮನವೇ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮವು ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ. ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಾನು ಓರ್ನಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೇವಕರು. ನೂತನ ಹಿಮದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿ ತೊಡಗಿತು. ನೂತನ ಹಿಮದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿ ತೊಡಗಿತು. ಎಂದು ಆತನ ಪರಮ ಭರವಸದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವರು. ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮವು ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ. ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಓರ್ನಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೇವಕರು. ಭೂಲೋಕದವರು ಮೇಲೋಕದವರು ಕೀರ್ತಿಪನ ಭೂಲೋಕದವರು ಮೇಲೋಕದವರು ಕೀರ್ತಿಪನ ಬರಿಸಿ ಮೇಲಿನ ದನವ ಹೊಂದುವಿರೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಸುನಾಮ ದಿವ್ಯ ಮಧುರವಾದೆ. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಓರ್ನಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೇವಕರೇ. प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अभी जनवरी 2021 टू जून 2021 तक ऐसा देखने के लिए जाएंगे तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ, बट इस 6 मंथ में परमेश्वर ने हमें एकदम फूलों की तरह संभाल के रखा। इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं यहाँ पर एक मेंशन बात करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन हुआ था और उस वक्त हमारी फैमिली के कुछ सदस्यों ने अपनी जॉब को गंवाया था, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को आंसर देते हुए इस 6 मंथ के भीतर ही उनको जॉब नई तरीके से जॉब प्रदान की। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी। और हमारे बीइंग फैमिली के सारे बच्चों को अभी तक बहुत
सुंदर तरीके से संभाल के रखा और उनको पढ़ाई में उनको सहायता कर रहा है परमेश्वर, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಚರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆವು. ಮಾರ್ಚ್ 31 ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನವರಿಗೆ 3 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಚಾನಕ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ತೀರುವುದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. प्रेज द लॉर्ड। सभी को छोटा सा गवाही मैं देना चाहूँगा। गवाही देने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट मैं पहले करूँगा। पता नहीं, जब मैंने अनाउंस किया कि थैंक्स गिविंग सर्विस हम लोग कर रहे हैं, अगर परमेश्वर ने कुछ कार्य किया है तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने टेस्टिमनीज़ को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग सुनकर जो है प्रेरित हो सके, अपने विश्वास को बढ़ा सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। बहुत ही कम वीडियो जो है मुझे मिला, पता नहीं परमेश्वर ने शायद आपके जीवन में कार्य नहीं किया, इसलिए आप लोग जो है उसको मना नहीं सके, या वीडियो करने से जो है लोगों के सामने हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए हिचकिचा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अपने घरों में पर्सनल प्रेयर्स में एटलीस्ट परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा। बहरहाल परमेश्वर का वचन कहता है लोगों के सामने, मंडली में, कलीसिया में परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपकी गवाही से परमेश्वर जो है औरों के जीवन के विश्वास को बढ़ा देता है। यस, मैं नहीं मानता था टेस्टिमनीज में, बट दिस इज़ द रियलिटी। होता है, भले मुझे नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं जिसका विश्वास में बढ़ोतरी आती है जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं। दिस इज़ द ट्रूथ। और मेरी एक छोटी सी गवाही है जिसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बल्कि मैं कहूँगा कि जितना धन्यवाद कहा जाए परमेश्वर से वो कम ही है। हम सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने 4 साल के बाद जो है संतान की प्राप्ति को दिया है, और इस जनवरी से लेके जून तक का ये टेस्टिमनी का टाइम है। लेकिन लास्ट ईयर से लेके अभी तक भी, जून तक भी, पूरे लॉकडाउन में, पैंडेमिक में, कोरोना के टाइम पे मेरे परिवार के एक भी सदस्य को जो है कोई बीमारी नहीं हुआ। दिस इज़ अ शॉकिंग थिंग। लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में बोलते ना, हमारे लाइफ में बीमारी आया, परमेश्वर ने चंगा किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कोई चमत्कार चंगाई नहीं किया है, लेकिन इससे भी बड़ा चंगाई परमेश्वर ने दिया कि हमें किसी को भी बीमार होने ही नहीं दिया। वाओ, आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर दिस। परमेश्वर ने सुरक्षित हमारे पूरे परिवार को रखा है, मम्मी डैडी को, पूरे फैमिली मेंबर्स को। और ऐसा हम लोग सभी को पता है, एक जनरल बातें हैं कि छोटे बच्चों को जो है बहुत अधिक रीति से संभालना पड़ता है, और शुरुआत में जो है कुछ ना कुछ बीमारी, यहाँ पर रोना, या बोलते ना अलग अलग चीज़ें होता है। लेकिन 8 मंथ चल रहा है, अभी तक मेरे बच्चे को जो है इस तरीके का कोई भी शिकायत लेकर हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए। कोई बीमारी, कोई वायरल, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए जो है मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी छोटी सी गवाही है जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का, जो कार्य मेरे जीवन में किया है। और मैं आशा करूँगा कि मेरे जीवन में हमारे परिवार को इसी रीति से परमेश्वर संभाले, और साथ ही साथ हम सभी के परिवारों को भी परमेश्वर संभाले। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी कार्य हुआ है, अभी तक परमेश्वर ने आपको संभाला है, जॉब को अच्छे से रखा है,
सभी कुछ जो है आपको उपलब्धि हो रही है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। थैंक यू। ये मेरी छोटी गवाही है और मेरा स्टेटमेंट है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इस समय में हमें गीत को गाएंगे, हिंदी गीत। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम सभी ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ನಾವು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು निंतुಕೊಂಡಿದ್ದರೆ निमगोस्कर विशेष प्रार्थने माडलागुವುದು। अगर कोई अपने जन्मदिन को या वेडिंग एनिवर्सरी को इस हफ्ते मना रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने स्थानों पर अगर खड़े रहें, आपके लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ರಾಜದಿ ರಾಜನೇ, ದೇವದಿ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನದ ನಾವು ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ನೀನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ। ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿವಾಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರದಾನಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ವಿಷನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು ಕರ್ತನೆ। ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಅವರ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಸ್ತೋತ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ವರ್ಷ ನೀನು ಜೋಡಿಸಿದಿ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಹೊಸ ಆನಂದಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವೆನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್। ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.